میرے عزیزو، اگر آج آپ کے دل میں مالی بوجھ ہے، اگر آپ قرضوں، کمی یا تنگ دستی کے دائرے میں پھنسے ہوئے ہیں، تو یہ دعا آپ کے لیے ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب آپ خداوند کو اپنے چرواہے کے طور پر قبول کرتے ہیں، کیونکہ جب خدا ہمارا چرواہا ہے تو پھر کمی رہ ہی نہیں سکتی۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اس دعا کو دل سے دہرائیں اور دیکھیں کہ خدا کیسے آپ کے حالات بدلنے لگتا ہے۔ چلیں اپنی آنکھیں بند کریں، دل کو خدا کی حضوری میں لے آئیں اور کہیں، اے میرے خداوند یسوع، میرا چرواہا تو ہے، مجھے کسی چیز کی کمی نہیں۔ میں آج تیرے سامنے اپنے خالی ہاتھوں، اپنے خالی دل اور اپنی خالی جیب کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو وہ خدا ہے جو بیابان میں بھی من برساتا ہے، تو وہ خدا ہے جو پتھروں سے پانی نکالتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میری کمی تیرے لیے مسئلہ نہیں، میرا قرض تیرے لیے بوجھ نہیں، اور میرا مایوس دل تیرے لیے ناقابل علاج نہیں، کیونکہ تو میرا چرواہا ہے، اور جب تو میرا چرواہا ہے تو کمی کبھی نہیں رہ سکتی۔ اے خداوند، میں اپنے مالی حالات تیرے قدموں میں رکھتا ہوں۔ میرے بینک اکاؤنٹس، میری نوکری، میرا کاروبار، میرے خواب، سب تیرے سامنے ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ تیری مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اگر آج میں تنگی میں ہوں تو یہ اس لیے نہیں کہ تو مجھے بھول گیا ہے، بلکہ اس لیے کہ تو مجھے ایمان میں مضبوط کر رہا ہے کہ خدا تو جانتا ہے کہ دنیا میں ہر دروازہ میرے لیے بند لگتا ہے۔ لوگ مجھے ناکام کہتے ہیں، میرے رشتہ دار میرا مذاق اڑاتے ہیں، اور میرے اپنے بھی مجھ پر شک کرتے ہیں، لیکن میں تیرے کلام پر کھڑا ہوں جو کہتا ہے کہ خداوند میرا چرواہا ہے، مجھے کچھ کمی نہ ہوگی۔ میں آج اعلان کرتا ہوں کہ غربت میرا انجام نہیں، تنگدستی میری پہچان نہیں، اور قرض میری قسمت نہیں۔ میری قسمت تو ہے، اے یسوع، جب دنیا کہتی ہے کہ ممکن نہیں، تو کہتا ہے میں راستہ ہوں۔ جب بینک کہتا ہے کہ تمہارے پاس کریڈٹ نہیں، تو کہتا ہے میرے پاس آسمان کے خزانے ہیں۔ جب میں کہتا ہوں کہ میرے پاس کچھ نہیں بچا، تو کہتا ہے میں تجھے آرام کی گھاس والی چراگاہوں میں لیٹا دوں گا۔ اے خداوند، میں اس روح کو توڑ دیتا ہوں جو مجھے غربت سے باندھتی ہے۔ میں اس لعنت کو رد کرتا ہوں جو کہتی ہے کہ میں کبھی اوپر نہیں اٹھوں گا۔ یسوع کے نام میں اعلان کرتا ہوں، میں برکت پانے والا ہوں۔ میں اس چرواہے کی بھیڑ ہوں جس کی چراگاہیں کبھی خالی نہیں ہوتی۔ میرے خدا، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو مجھے مالی علم، حکمت اور سمجھ دے رہا ہے۔ مجھے سکھا کہ میں کیسے تیری دی ہوئی دولت کو استعمال کروں۔ مجھے سکھا کہ میں تیرے منصوبے کے مطابق کام کروں۔ میری محنت کو برکت دے، میری کوششوں کو کامیابی دے، اور میری زندگی کو دوسروں کے لیے گواہی بنا۔ خداوند، میں تیرے حضور اپنے خوفوں کو بھی رکھتا ہوں۔ وہ خوف جو کہتا ہے کہ میں کبھی قرض سے آزاد نہیں ہو سکتا، وہ جھوٹ جو کہتا ہے کہ میرا نصیب ہمیشہ خالی رہے گا، میں انہیں یسوع کے خون کے نیچے رکھ دیتا ہوں، کیونکہ میرا خداوند وہ چرواہا ہے جو کمی کو فراوانی میں بدل دیتا ہے۔ اے یسوع، جب میں موت کی وادی سے گزرتا ہوں، جب مالی بحران مجھے گھیر لیتا ہے، جب میں آفتوں کے پہاڑ تلے دب جاتا ہوں، تو بھی تو میرے ساتھ ہے۔ تیرے عصا اور لاٹھی مجھے تسلی دیتے ہیں۔ تو میرے دشمنوں کے سامنے میرے لیے دسترخوان بچھاتا ہے، ایسا دسترخوان جو قرضوں سے نہیں بلکہ تیری برکتوں سے بھرا ہے۔ میں تیرے سامنے اعلان کرتا ہوں، میرا خدا وقت پر رزق دینے والا ہے، میرا خدا وافر دینے والا ہے، اور میرا خدا اپنے وعدے پورے کرنے والا ہے۔ اے خداوند، میں تیرے کلام کے مطابق ایمان رکھتا ہوں کہ تو میرے سر پر تیل انڈیلتا ہے، میرا پیالہ لبریز ہو جاتا ہے، میرے خزانے بھر جاتے ہیں، میرے کاروبار میں اضافہ ہوتا ہے، میری آمدنی بڑھتی ہے، اور میری زندگی تیرے جلال کا سبب بنتی ہے۔ میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ تو ان راستوں کو کھول دے جو بند ہیں، تو ان رشتوں کو درست کر دے جو کاروبار کے لیے اہم ہے، تو میرے لیے نئے مواقع بھیج دے۔ اے خداوند، میں تیرا انتظار نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ تو ہی میرا منبع ہے، اور میں تیرے وعدوں پر کھڑا رہوں گا۔ اے آسمانی باپ، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کیونکہ تو میرا چرواہا ہے، اور تو مجھے وہاں لے جاتا ہے جہاں سبز چراگاہیں ہیں۔ یہ دنیا چاہے خشک ہو، حالات چاہے سخت ہوں، لیکن تو میرے لیے ایسی چراگاہیں تیار کرتا ہے جہاں رزق،
अमन और बरकत है। ए खुदावंद, मैं एतराफ करता हूं कि मैंने बहुत बार अपनी मेहनत पर भरोसा किया। मैंने अपने हाथों की ताकत को अपना जरिया समझा। मैंने अपनी समझ पर इन्हिसार किया। लेकिन आज मैं जानता हूं कि मेरा रिस्क मेरे काम से नहीं बल्कि तेरे हाथ से आता है। मेरा रिस्क तू है, मेरा जरिया तू है, और मेरे लिए सब्ज चरागाहें भी तूने ही तैयार की हैं। ए खुदा, मैं अपनी जिंदगी के हर खुश्क मैदान को तेरे हवाले करता हूं। वो नौकरी जहां तरक्की रुक गई है, वो कारोबार जहां नुकसान हो रहा है, वो मंसूबा जो फल नहीं ला रहा, मैं वो सब तेरे कदमों में रखता हूं और ऐलान करता हूं कि तू अब मेरे लिए इन वादियों में भी सब्ज चरागाहें उगा रहा है जहां कभी कुछ नहीं उगता था। यसू, तू मेरी माली जमीन को नए सिरे से आबाद कर। जहां नाकामी ने जमीन को बंजर कर दिया है, जहां मायूसी ने बारिश रोक ली है, तू वहां अपने फजल की बारिश बरसा दे। तू वो चरवाहा है जो अपनी भेड़ों को खुश्क मैदानों से निकालकर सरसब्ज मकामात पर ले जाता है। तू जानता है मुझे कहां ले जाना है, तू जानता है कहां मेरा रिस्क छुपा है, और तू जानता है कब मुझे वहां पहुंचाना है। ए खुदावंद, मुझे इस मकाम तक पहुंचा जहां बरकतें बहती हैं, जहां मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी बरकत का बाइस बनूं। मुझे ऐसा वसीला बना दे कि मेरे वसीले से गरीबों के घरों में भी रोजी पहुंचे। खुदावंद, तू कहता है कि तू मुझे आरामदेह पानियों के पास ले जाता है। ए यसू, मेरे माली तूफानों में तू सुकून दे। मेरे कर्जों के शोर के दरमियान तू अपनी तसल्ली की आवाज सुना। मेरे दिल के अंदर जो खौफ और बेचैनी है, इसे अपने पानियों के सुकून से बदल दे। ए खुदा, जब मैं रातों को जागता हूं और सोचता हूं कि कल कैसे गुजरेगा, तो मुझे याद दिला कि तू ही वो है जो मेरे लिए पहले से इंतजाम करता है। तू मेरा चरवाहा है जो भेड़ से पहले चरागा में पहुंचकर देखता है कि सब कुछ महफूज और तैयार है। तू जानता है मैं कब भूखा हूं, कब थका हूं और कब टूटा हूं, और तू जानता है कि मुझे किस चरागा में आराम की जरूरत है। मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं ए यसू, क्योंकि तू मेरे माली फैसलों में मुझे रहनुमाई दे रहा है। तू मुझे समझ दे रहा है कि कहां बीज बोना है और कहां इंतजार करना है। तू मुझे ये सिखा रहा है कि हकीकी दौलत पैसा नहीं बल्कि ईमान है, क्योंकि ईमान ही वो बीज है जो आसमानी खजाने खोलता है। ये खुदावंद में ऐलान करता हूं कि मैं अब कमी में नहीं बल्कि फरावानी में चिल्लूंगा। मैं अब डर से नहीं बल्कि ईमान से जाऊंगा। मैं अब दुनिया की राय से नहीं बल्कि तेरे वादों से फैसला करूंगा। मेरे माली हालात तेरे इख्तियार में है, और तू जानता है कि कब और कैसे मुझे आसमानी तरक्की देना है। ए खुदा, मैं इन सब रास्तों को तेरे सामने खोलता हूं जहां शैतान ने रुकावटें डाल रखी हैं, जहां हसद, बदखाही या लानत ने मेरे रिस्क के बहाव को रोका है। यसू के नाम में मैं इन सब दीवारों को गिरा देता हूं। मैं ऐलान करता हूं कि मेरे रिस्क का दरवाजा खुल गया है, मेरे लिए रास्ते हमवार हो गए हैं, और खुदावंद खुद मुझे सब्ज चरागाहों में ले जा रहा है। यसू, मुझे अपनी हुजूरी में ऐसा सुकून दे कि मैं अपनी माली हालत को घबराहट के बगैर देख सकूं। मुझे यकीन दे कि जो कुछ मैं देख नहीं सकता वो भी तेरा इंतजाम है। जब मेरा पर्स खाली हो तब भी मैं तेरे वादे पर खड़ा रहूंगा कि तू मुझे आरामदेह पानियों के पास ले जाएगा। ए खुदावंद, मेरी जिंदगी के हर शोबे में बरकत जारी कर। मेरे कारोबार में, मेरी तनख्वाह में, मेरे मंसूबों में, मेरे हर कदम में तेरे फजल का निशान हो। तू मेरे लिए इन लोगों के दिलों में जगह बना दे जिनके जरिए मेरा रिस्क आना है। तू उन फैसलों को मेरे हक में मोड़ दे जिनसे मेरा फायदा होना है। मैं तेरे सामने शुक्रगुजारी करता हूं कि तूने मुझे बेयार व मददगार नहीं छोड़ा। तूने मुझे सब्ज चरागाहों में बिठाया है जहां तेरी मोहब्बत, तेरी हिकमत और तेरी फराहमी बह रही है। ये खुदा, मैं इस बहाव का हिस्सा बनना चाहता हूं। मुझे वो दिल दे जो देने से खुश होता है, वो जहन दे जो बरकत को समझता है, और वो ईमान दे जो नामुमकिन को मुमकिन बनता देखता है। ये खुदावंद, मेरे चरवाहे, तुम वो है जो मेरी जान को बहाल करता है। तुम वो है जो टूटे हुए दिल को जोड़ देता है। तुम वो है जो बिखरे हुए ख्वाबों को दोबारा तरतीब देता है, और तुम वो है जो गिरे हुए इंसान को दोबारा खड़ा करता है। ए खुदा, मैं जानता हूं कि माली शिकस्त अक्सर अंदरूनी शिकस्त से शुरू होती है। जब मेरा दिल हार मान लेता है, जब मैं अपनी कदर भूल जाता हूं,
जब मैं यकीन खो देता हूं कि मैं तेरे मंसूबे का हिस्सा हूं, तो इस लम्हे शैतान मुझे यकीन दिलाने लगता है कि मेरा रिस्क खत्म हो गया है। लेकिन आज मैं ऐलान करता हूं कि तू मेरी जान को बहाल कर रहा है। ये यसू, तू मेरी रूह में नई जिंदगी फूंक दे। जहां मायूसी ने अंधेरा किया है, जहां खौफ ने उम्मीद को ढांप लिया है, जहां पिछली नाकामियों ने एतमाद छीन लिया है, तू वहां अपनी रोशनी भेज। तू वो रोशनी है जो अंधेरों में चमकती है और तेरे लिए कोई चीज नामुमकिन नहीं। ये खुदावंद, मैं अब वो शख्स नहीं रहना चाहता जो सिर्फ कमी देखता है। मुझे अंदर से मजबूत बना ताकि मैं हर चैलेंज का सामना करूं। मुझे ये यकीन दे कि चाहे हालात कुछ भी हों, मेरा खुदा हर हाल में वफादार है। ये खुदा, मेरी सोचों को बहाल कर। मैं इन ख्यालात को रद्द करता हूं जो कहते हैं कि मैं कभी कामयाब नहीं हो सकता। मैं इन झूठों को तोड़ता हूं जो मुझे मेरी पैदाइशी बरकत से महरूम रखना चाहते हैं। मैं इन मनफी आवाजों को खामोश करता हूं जो कहती हैं कि मैं काफी नहीं हूं। यसू के खून के वसीले से मैं आजाद हूं, आजाद नाकामी के खौफ से, आजाद लोगों की बातों से और आजाद माजी की गलतियों के बोझ से। ये खुदावंद, तू मुझे सदाकत की राहों पर ले चल। मुझे वो फैसले करना सिखा जो तेरी मर्जी के मुताबिक हों। मुझे वो कारोबारी रास्ते दिखा जो बरकत से भरे हों। मुझे वो माली मौके दे जिनमें तेरे जलाल का इजहार हो। मैं अब अपनी मर्जी से नहीं बल्कि तेरे रास्ते पर चलना चाहता हूं, क्योंकि तेरे रास्ते हमेशा सलामती और बढ़ोतरी के होते हैं। ये खुदा, तू मेरा दिल नया बना, ऐसा दिल जो शुक्रगुजारी में रहे, जो देने से ना डरे, जो लालच से पाक हो और जो हमेशा तेरे फजल पर भरोसा करे। मुझे वो दिल दे जो दौलत से नहीं बल्कि तेरे हुजूर से खुश हो, क्योंकि जब दिल दुरुस्त होता है तो रिज्क खुद ब खुद बहने लगता है। ए यसू, मुझे ईमानदारी के रास्ते पर चलने की ताकत दे। मुझे इन फैसलों से बचा जो रिश्वत, झूठ या बददियानती के फैसले हैं। मैं अपने माली रिस्क में पाकीज़गी चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जो भी रुपया मेरे हाथ से गुजरे वो तेरी बरकत से गुजरे, क्योंकि मैं जानता हूं खुदावंद कि तेरे लिए रिस्क से ज्यादा जरूरी किरदार है, और जब मेरा किरदार दुरुस्त होगा तो रिस्क खुद ब खुद आएगा। ए खुदावंद, मेरी रूह को बहाल कर ताकि मैं दोबारा ख्वाब देख सकूं। तू वो खुदा है जो इब्राहिम को बुढ़ापे में वदा देता है, जो सारा के हंसने को ईमान में बदल देता है, जो दाऊद के चरवाहा होने को बादशाही में बदल देता है। ये खुदा, मेरी जिंदगी में भी वही कर। मेरे अंदर के चरवाहे को बादशाह बना दे, मेरे अंदर के खौफ को ईमान में बदल दे, मेरे अंदर के टूटे ख्वाबों को वादे में बदल दे। ए खुदा, मेरी रूह को बहाल कर ताकि मैं तेरे मंसूबे को देख सकूं। मुझे सिखा कि गुर्बत और कमी का मुकाबला सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि ईमान से होता है। मुझे सिखा कि जब मैं तेरे मंसूबे पर भरोसा करता हूं तो तू उन रास्तों को खोलता है जो इंसानी समझ से बाहर है। ए खुदावंद, तू मुझे सदाकत की राहों पर ले चल, वो रास्ते जो मुझे तुझसे करीब करे, जो मेरे फैसलों को साफ करे और जो मेरे रिस्क को तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल करे। मैं चाहता हूं कि दौलत मुझे तेरी बादशाहत के करीब लाए। ए यसू, मैं तेरे सामने ऐलान करता हूं, मेरी जान बहाल हो चुकी है, मेरा ईमान ताजा हो गया है, मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है और मेरा रास्ता अब सदाकत से रोशन है। मैं अब माजी के जख्मों के साथ नहीं बल्कि नए अज़्म के साथ चलूंगा। मैं अब खौफ के साथ नहीं बल्कि ईमान के साथ आगे बढ़ूंगा, और मैं अब मानता हूं कि तू मेरे हर कदम को बरकत देने वाला है। ये आसमानी बाप, अगरचे मैं मौत के साया की वादी से गुजर रहा हूं, कर्ज के अंधेरे से, कमी के बोझ से और मायूसी के साए से, ए खुदावंद, जब दुनिया के दरवाजे बंद होते हैं, जब बैंक इनकार करते हैं, जब दोस्त पीछे हट जाते हैं, जब उम्मीद कमजोर पड़ जाती है, तो तू वो खुदा है जो कहता है, मैं तेरे साथ हूं, डर मत, क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं। ए खुदा, तेरे होने से ही मेरा दिल मजबूत होता है। मैं अपनी जिंदगी के हर इस शोबे को तेरे हवाले करता हूं जो माली नुकसान में है, वो कारोबार जो मुरझा गया है, वो नौकरी जो खत्म हो गई है, वो ख्वाब जो अधूरे रह गए हैं, मैं वो सब तेरे हाथों में दे देता हूं, क्योंकि तेरे हाथ मौत की वादी से भी जिंदगी निकाल सकते हैं। ए खुदा, तेरा असा और तेरी लाठी मुझे तसल्ली देते हैं।
तू वो चरवाहा है जो अपनी भीड़ को गुम नहीं होने देता। जब मैं भटक जाता हूं तू मुझे पकड़कर वापस लाता है। जब मैं गिर जाता हूं तू मुझे उठाता है। जब मैं रोता हूं तू मेरे आंसू पोंछता है, और जब मैं मायूस होता हूं तू अपनी लाठी से मुझे आगे बढ़ने की ताकत देता है। ए खुदावंद, मैं आज तेरे वादे पर खड़ा हूं। मैं ऐलान करता हूं कि ये माली अंधेरा आर्जी है। ये बहरान खत्म हो जाएगा, ये कमी मिट जाएगी, ये कर्ज अदा हो जाएंगे, क्योंकि मेरा खुदा हमेशा अपने वादे पूरे करता है। ए यसू, मेरी जिंदगी में ऐसे वक्त आ रहे हैं जब वो लोग जो मेरा मजाक उड़ाते थे वो देखेंगे कि खुदा ने मुझे किस तरह बरकत दी है। मेरे दुश्मनों के सामने तो मेरे लिए इज्जत का दस्तरखान बिछा रहा है। मेरे हाथों में कामयाबी का प्याला दे रहा है। मेरा प्याला लबरेज हो रहा है और मेरी जबान पर सिर्फ शुक्रगुजारी है। ये खुदावंद, मैं शुक्रगुजार हूं कि तू मेरे माली हालात के पीछे काम कर रहा है। तू इन लोगों के दिलों को नरम कर रहा है जिनके हाथ में मेरा रिस्क है। तू उन फैसलों को मेरे हक में बदल रहा है जो मेरे खिलाफ थे। तू उन रास्तों को खोल रहा है जो बरसों से बंद थे। तू वो खुदा है जो नामुमकिन को मुमकिन बनाता है। ए खुदा, मैं अब अपने हालात को ईमान से देखता हूं। मैं कहता हूं, कमी अब खत्म हो गई, माली तंगी अब माजी बन गई, बरकत का मौसम आ गया है, क्योंकि तू मेरा चरवाहा है और तू मेरा हिस्सा है। ए यसू, जब मैं इस वादी से गुजर रहा हूं मुझे वही देखने दे जो तू देखता है। जहां मैं मसला देखता हूं तू मौका देखता है। जहां मैं कमी देखता हूं तू बरकत देखता है। जहां मैं दरवाजा बंद देखता हूं तू नया रास्ता खोल देता है। मैं चाहता हूं कि मेरी आंखें तुझ पर लगी रहे, न कि हालात पर और न ही अदात पर, बल्कि तेरे वादे पर। ए खुदा, तू मेरे अंदर वो ईमान पैदा कर जो पतरस में था। जब इसने जाल फेंका और वो भर गया, मुझे भी वही जाल अता कर जो तेरे कलाम पर चलता है। मुझे वो कदम अता कर जो पानी पर भी तेरे नाम से चल सके। मुझे वो ईमान अता कर जो तब भी यकीन रखे जब सब कुछ नामुमकिन लगे। ए खुदावंद, मैं तेरे सामने ऐलान करता हूं, मेरा खुदा फराहमी का खुदा है। मेरा खुदा वक्त पर काम करने वाला है और मेरा खुदा अपनी भीड़ को कभी भूखा नहीं छोड़ता। मैं अब खौफ से नहीं बल्कि ईमान से जीने का फैसला करता हूं। मैं अब कमी की जबान नहीं बल्कि शुक्रगुजारी की जबान बोलूंगा। मैं अब मायूसी की जगह उम्मीद को अपनाऊंगा और मैं अब अपने मुस्तकबिल को तेरे वादों पर तामीर करूंगा। ए खुदा, मैं दुआ करता हूं कि जो भी शख्स इस दुआ को सुन रहा है, जो कर्ज में है, जो जिदोजहद कर रहा है, जो हार मानने के करीब है, तू उसे छू ले, इसके दरवाजे खोल दे, इसके हाथ को मजबूत कर, इसकी सोच को बदल दे। ए यसू, इन सब के लिए नई सुबह ला, ऐसी सुबह जिसमें बरकत के दरवाजे खोले, जिसमें मौके बहें, जिसमें मुजिज़े हों और जिसमें तेरे वादों की तकमील हो। मैं शुक्र करता हूं खुदावंद कि तू मेरी दुआ सुन चुका है। मैं शुक्र करता हूं कि तू मेरी जिंदगी में माली खुशहाली ला रहा है। मैं शुक्र करता हूं कि तू मेरा चरवाहा है और मुझे किसी चीज की कमी ना होगी। आमीन। मेरे अजीजों, अगर आपने ये पूरी दुआ ईमान से सुनी और दोहराई है तो यकीन रखें, आसमान ने आपकी फरियाद सुन ली है। अब वक्त है कि आप इस ईमान को दूसरों के साथ बांटें। अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपके घर, कारोबार और नस्लों को बरकत दे तो इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट में खुदा मेरा चरवाहा है लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप रोजाना ऐसी रूहानी दुआएं सुन सकें जो आपकी जिंदगी को बदलने वाली है। खुदावंद यसू मसीह आप सब पर अपनी माली, रूहानी और जिस्मानी बरकतें नाजिल करे। आमीन।